Students, this online tutorial class is for BSc IT SEM 3rd. The paper number is BIT C5. The paper name is Operating System. And in today's online class, we are going to study about memory management. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, मेमोरी मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, which means managing the memory of the system. As we know, in multitasking, there are different processes residing in our system. So, every process needs certain amount of memory to execute its task. So, in multitasking, it's become difficult to manage memory as different processes needs memory, because certain process needs to be in memory to execute its task. At that time, certain processes which are already residing in memory needs to be swapped out of memory. So these all techniques are related to memory management. So first, let's look into the introduction of memory management. Then we will study swapping, paging, contiguous memory allocation. These are different memory management technique which we are going to study today. Okay, so let's now look into this. So what is memory management? Memory management is the functionality of an operating system which handles or manages primary memory and moves processes back and forth between main memory and disk during execution. मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि मल्टीटास्किंग में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और सभी प्रोसेस को अपना टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है। और क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस रन करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाता है, सभी प्रोसेस को मेमोरी चाहिए, तो सभी प्रोसेस को एक साथ तो मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। सो मेमोरी मैनेजमेंट का जॉब क्या है? जो प्रोसेस को जिस समय एग्जीक्यूट करना है टास्क में, उस समय उसको मेन मेमोरी एलोकेट किया जाए, और जो प्रोसेस को अभी कुछ डिफरेंट टास्क करना है, जैसे इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखें। जब वो प्रोसेस को फिर टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो फिर से उसको मेन मेमोरी में मूव किया जाए। मतलब मेन मेमोरी से मूव करना डिस्क में, और डिस्क से फिर मूव करना मेन मेमोरी में इज द task of memory management. So it checks how much memory is to be allocated to processes. It decide which process will get memory at what time. किस प्रोसेस को किस समय में मेमोरी एलोकेट करना है. It also tracks whenever some memory gets freed or unallocated, and correspondingly it updates the status. Okay. So how memory is allocated in the system? Okay, how memory is allocated in the system? There are three basic terms. First is first fit. What is first fit? Means the first hole that is big enough to allocate to program. That is first part of the memory that is enough to be allocated to the program. Okay. Next is best fit. Second is best fit, means the smallest hole that is big enough to allocate to a program. वो छोटा सा एक पार्ट मेमोरी का जो एक प्रोग्राम के लिए काफ़ी है ताकि वो अपना टास्क उसमें एग्जीक्यूट कर सके. नेक्स्ट इज वर्स्ट फिट. वर्स्ट फिट का मतलब क्या है? एक प्रोग्राम या प्रोसेस को हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा मेमोरी एलोकेट कर दे रहे हैं. दैट इज़ द लार्जेस्ट होल दैट इज़ बिग इनफ टू एलोकेट टू अ प्रोग्राम. बहुत ज़्यादा उसको मेमोरी एलोकेट कर दे रहे हैं, उतना उस प्रोग्राम या प्रोसेस को उतना मेमोरी का ज़रूरत नहीं है. तो ये क्या हो गया हमारा वर्स्ट फिट. ओके, सो नाउ
there is another memory management technique that is called swapping. Okay, that is called swapping. Swapping का मतलब क्या है? Swapping is one of the memory management technique. In swapping, an idle or blocked process in the main memory is swapped out to the disk, and the process that is ready for execution in the disk is swapped in main memory for execution. स्वैपिंग में क्या करेंगे? जो मेन मेमोरी में हमारा आइडल प्रोसेस है, मान लो यहाँ पे हमारे पास आइडल प्रोसेस था P1 अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे? इज स्वैप्ड आउट ऑफ द मेन मेमोरी, और उसको जाके डिस्क स्टोर में फिर सेटल कर देंगे। और जो प्रोसेस P2 हमारे पास था जो कि डिस्क में था, अब ये दिस नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, सो दिस प्रोसेस इज मूव्ड इनटू द मेन मेमोरी सो दैट इट एग्जीक्यूट्स इट्स पार्ट. दिस इज नोन एज स्वैपिंग. स्वैपिंग मतलब क्या? बाहर निकालना फिर अंदर करना. ठीक है, प्रोसेस जो आइडल है या कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना चाह रहा है प्रोसेस, तो उसको क्या करेंगे? स्वैप्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी, and those who needs memory for execution is swapped into the main memory. This is called swapping. Now next term is contiguous memory allocation. contiguous memory allocation का मतलब है एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम प्रोग्राम या प्रोसेस को एलोकेट कर देते. contiguous ब्लॉक ऑफ मेमोरी मतलब लगातार कंटिग्यूअस मेमोरी. जैसे एरे में देखते थे ना, एरे में क्या था? कंटिग्यूअस मेमोरी हम लोग एलोकेट कर देते थे एरे को. उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेंगे? एक कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स को हम लोग प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे. सो contiguous memory allocation is a memory allocation method that allocates a single contiguous section of memory to a process or a file. This method takes into account the size of the file or a process and also estimates the maximum size up to what the file or process can grow. ठीक है, जैसे कि देख सकते हो एग्जांपल में डायग्राम में, फाइल A को 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट की, उसी तरह फाइल B को 2 बाइट्स, फिर फाइल C को 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट किए, फाइल D को 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट किए, फाइल E को 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट की. तो यहाँ क्या हो रहा है? कंटिग्यूअसली हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं एक फाइल या प्रोसेस को. इसी को बोलते हैं क्या? कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देखो सेकंड बी डायग्राम में देखो, जब फाइल ए अपना टास्क एग्जीक्यूट कर लिया तो वो अपना मेमोरी को लीव कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है. उसी तरह से देखो फाइल सी भी अपना टास्क को एग्जीक्यूट कर लिया, तो बीच में क्या बन गया? खाली जगह बन गया, होल बन गया. यहाँ पे 3 बाइट्स ऑफ मेमोरी का और यहाँ पे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी का होल या ब्लैंक क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो ये इसका कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का डिसएडवांटेज है. So in contiguous memory allocation, when the process arrives from the ready queue to the main memory for execution, the contiguous memory blocks are allocated to the process according to its requirement. अब जो प्रोसेस वेट कर रहा है वो किस में रहेगा? रेडी क्यू में रहेगा. एक रेडी क्यू होता है जिसमें हमारे सारे प्रोसेसेस क्या करते हैं? वेट करते हैं. मान लो प्रोसेस P1, P2, P3, ये सारे प्रोसेस रेडी क्यू में क्या करते हैं? वेट करते हैं. फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? एक एक प्रोसेस को मेन मेमोरी में मूव करते हैं. मेन मेमोरी में मूव करेंगे. ठीक है, तो जो प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहा था एग्जीक्यूशन के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करेंगे मेन मेमोरी में. ठीक है,
अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, कितना हमको मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करना है वो प्रोसेस या फाइल के रिक्वायरमेंट, कितना उसको ज़रूरत है मेमोरी का, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना हम लोग मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करेंगे. ओके, नाउ टू एलोकेट द कंटिग्यूअस स्पेस टू यूज़र प्रोसेसेस, the memory can be divided either in fixed size partition और वेरिएबल साइज पार्टीशन. मतलब फिक्स साइज पार्टीशन में मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं या वेरिएबल साइज पार्टीशन में. मतलब एक मेमोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं. मान लो सारे में 4 बाइट का है, इसको भी 4 बाइट, सभी प्रोसेस को हम लोग 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर दिए, फिक्स साइज पार्टीशन हो गया. वेरिएबल साइज पार्टीशन क्या हो गया, किसी को हम लोग 2 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट किए, किसी को 3 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट किए, किसी प्रोसेस को हम लोग 4 ब्लॉक्स ऑफ memory allocated. Okay, so what is fixed size partition? In the fixed size partition, the memory is divided into fixed size block, as I have told you, and each block contains exactly one process. Each block of memory is allocated for only one process. Okay, but the fixed size partition will limit the degree of multi-programming, as the number of partition will decide the number of process. सही बोला गया है. इससे क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग को रिस्ट्रिक्शन मिलेगा. कैसे, क्योंकि मेमोरी हम लोग फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड कर दी. अब जितना पार्टीशन हुआ है उतना ही प्रोसेस हम लोग रन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो एलोकेट नहीं कर सकते दूसरा प्रोसेस को. तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का लिमिटेशन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल साइज पार्टीशन. वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ टेबल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल मेमोरी पार्ट्स दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द प्रोसेसेस एंड ऑल मेमोरी पार्ट्स दैट आर स्टिल अवेलेबल फॉर द प्रोसेसेस. वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होगा, जिस प्रोसेस को जितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए उतना ही उसको हम लोग एलोकेट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे जो है सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है और उस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, कौन सा मेमोरी ऑक्यूपाइड है, कौन सा मेमोरी फ्रीड है, खाली है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज वेरिएबल साइज पार्टीशन. नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी अबाउट पेजिंग. व्हाट इज पेजिंग? ओके, so paging is a storage mechanism that allows operating system to retrieve processes from the secondary storage into the main memory in the form of pages. जैसा कि नाम से पता चल रहा है पेजिंग मतलब क्या, पेजेस. पेजिंग में क्या होगा, मेमोरी को हम लोग पेजेस में डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे. किस फॉर्म में, पेज के फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, यहाँ पे कोई प्रोसेस P1 है, P1 को जितना चाहिए था उतना पेज एलोकेट कर दिए. फिर प्रोसेस P2 को जितना एलोकेट चाहिए था उतना हम लोग पेजेस एलोकेट कर दिए. ओके, so in paging method the main memory is divided into small fixed size blocks of physical memory which is called frames. और ये जो डिवाइड किए हैं, डिवीज़न किए हैं मेमोरी का, हर एक ब्लॉक को क्या बोलेंगे, फ्रेम्स बोलेंगे. द साइज ऑफ फ्रेम शुड बी केप्ट द सेम एज दैट ऑफ द पेज to have maximum utilization of the main memory and to avoid external fragmentation. कोई एक्स्ट्रा मेमोरी बचा नहीं रह जाए, जितना प्रोसेस है उतना ही फ्रेम्स में इसको डिवाइड करें. पेजिंग इज़ यूज फॉर फास्टर एक्सेस टू डेटा एंड इट इज़ लॉजिकल कॉन्सेप्ट. अब जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हमारा जो मेन मेमोरी है उसको हम लोग डिवाइड कर लिए हैं 16 फ्रेम्स में या 16 पेजेस में.
अब हमारे पास प्रोसेस P1 था, प्रोसेस P1 को कितना चाहिए था, 4 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, तो 4 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी उसको हम लोग एलोकेट कर दिए A1 जैसा कि देख सकते हो 4 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दिए। प्रोसेस P2 को भी 4 ब्लॉक्स ऑफ चाहिए तो 4 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दिए। प्रोसेस 3 को भी 4 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी चाहिए था, प्रोसेस A4 को भी 4 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी चाहिए था। तो सारा प्रोसेस जो है वो अब हमारा क्या है, मेन मेमोरी में है, ताकि वो सारा प्रोसेस जो है वो अपना टास्क एग्जीक्यूट कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मेन मेमोरी इज size is 16 kilobyte and frame size is 1 kilobyte, hence the main memory will be divided into the collection of 16 frames of 1 kilobyte each। अगर हमारे पास एक मेमोरी है जिसका साइज़ क्या है 16 किलोबाइट का और हर एक फ्रेम का साइज़ क्या है 1 किलोबाइट का है, तो हम लोग मेमोरी को 16 फ्रेम्स में डिवाइड कर लेंगे और हर एक फ्रेम का साइज़ क्या है 1 किलोबाइट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 सेपरेट प्रोसेसेस है, प्रोसेस A1, प्रोसेस A2, जैसे कि अभी देखें प्रोसेस A1, प्रोसेस A1, प्रोसेस A2, प्रोसेस A3, प्रोसेस A4, 4 हमारे पास क्या है प्रोसेसेस है। सो हर एक प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हेंस ऑल द प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू पेजेस ऑफ 1 किलोबाइट ईच सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर 1 पेज इन 1 फ्रेम। हर एक प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। देखो हर एक प्रोसेस को 1 किलोबाइट 1 KB के साइज में डिवाइड कर लिए। प्रोसेस A1 को कितना चाहिए 4 KB, प्रोसेस A2 4 KB का, प्रोसेस A3 4 KB का, प्रोसेस A4 भी 4 KB का। इसको हम लोग डिवाइड कर लिए डिफरेंट फ्रेम्स में। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑल द फ्रेम्स रिमेन एम्प्टी सो दैट द पेजेस ऑफ द प्रोसेस विल गेट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस वे। और फिर सारे प्रोसेस को हम लोग को एक एक फ्रेम एलोकेट कर दिए। A1 को 4 फ्रेम का जरूरत था, 4 फ्रेम एलोकेट कर दिए। उसी तरह से A2 को 4 फ्रेम, उसको भी एलोकेट कर दिए मेन मेमोरी। A3 को भी 4 KB का चाहिए साइज़, तो वो भी एलोकेट हो गया। और A4 को भी 4 KB का साइज़ चाहिए था, वो भी हो गया एलोकेट। अब इसमें एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज देखो, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट A2 एंड A4 आर मूव टू द वेटिंग स्टेट। अब मान लो प्रोसेस A2 जो अभी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, प्रोसेस A2 एंड A4, ये प्रोसेस को इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करना है, तो इसको क्या करेंगे, स्वैप्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी। ये जो 4 किलोबाइट है ये हमारा फ्री हो गया। उसी तरह से प्रोसेस A4 का भी 4 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी फ्री हो गया है। सो इट इज स्वैप्ड आउट ऑफ द मेन मेमोरी, देयरफॉर 8 फ्रेम्स बिकम फ्री एंड so other pages can be loaded into that empty blocks। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास प्रोसेस A2 और A4 जो था वो मूव्ड आउट कर गया, तो हमारे पास क्या हो गया, स्पेस फ्री बच गया है। अब वो जो स्पेस या फ्रेम है वो हम किसी दूसरा प्रोसेस, मान लो प्रोसेस A5 है, उसको 8 KB चाहिए मेमोरी, तो क्योंकि प्रोसेस A2 का जो 4 KB का था और प्रोसेस A4 का जो 4 KB का मेमोरी था वो फ्री हो चुका है, तो ये हम प्रोसेस A5 को एलोकेट कर सकते हैं। A5 का फर्स्ट 4 फ्रेम्स हम लोग एलोकेट कर सकते हैं जो A2 ऑक्यूपाई किया था, और प्रोसेस A4 का जो 4 बाइट ऑफ KB ऑफ साइज का मेमोरी था वो प्रोसेस A5 को एलोकेट कर देंगे, ताकि प्रोसेस A5 अपना टास्क एग्जीक्यूट कर सके। ओके, सो ये यहाँ पे क्या है, एडवांटेज है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस कोई एलोकेट नहीं हुआ, प्रोसेस A5 को यहाँ पे 4 फ्रेम्स एलोकेट किया गया है
और लास्ट में 4 फ्रेम एलोकेट किया गया है। इससे क्या है, ये एडवांटेज है किसका, पेजिंग का। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट देयर आर 8 नॉन कंटिगुअस फ्रेम। देखो नॉन कंटिगुअस फ्रेम मतलब कंटिगुअसली एलोकेट नहीं किया गया, विच इज़ अवेलेबल इन द मेमोरी एंड पेजिंग ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द प्रोसेस एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस में हम लोग सेम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। This allows us to load the pages of process A5 instead of A4 and A2. Okay, so that's it for today, student. Hope you have learned about memory management in today's online classes. If you have any doubt or queries, you can ask me in the comment section.